ठीक है. All right, everyone, let's start off. Let's continue with probabilities. So last day we had started off with Bayes theorem. We did the sums with respect to conditional, unconditional, joint and everything. I'll be giving you one more sum. First you solve one sum and then we'll continue with the rest of the book portion, because most of it will already be covered with through just this example. So I want you to practice one more. So take this one. I'll fill up the numbers. Just take the question, I'll fill up the numbers over here. (36 divided by 48 कितना होता है? 75%, right? Quick. Compute everything, the whole table, conditional, unconditional, exactly every single formula. I'll give you 7 minutes. Do the whole thing, conditional, unconditional, Bayes theorem के सारे formulas, सारा कुछ. सबसे पहले you'll have to make the tree. Okay. Try this quickly. सोच के बताइए, एसबीआई इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट की इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से एसबीआई का शेयर प्राइसेस चेंज होगा, कि एसबीआई का शेयर प्राइसेस चेंज होगा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होगा. थिंक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एसबीआई चेंज होगा ना. इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करेगा ना, उसको रिएक्ट करने के लिए ऑल द बैंकिंग प्राइसेस विल चेंज. सो इंटरेस्ट रेट विल बी द इंडिपेंडेंट इवेंट एंड एसबीआई वुड बी द डिपेंडेंट इवेंट. Based on the movement of interest rate and all, SBI prices would be changing.
quick. Done. Tree is done, table is done. Shift back and share. हो गया सर? कोई से भी हुआ है अभी तक? नहीं. I will give you a few minutes. Try this अच्छे से. I hope I have given all the figures correctly. करो, देख रहा हूं मैं. Done? Okay, let me make the tree, then you guys continue again. So the question is, the probability that interest rates went up when the SBI prices were down is 75%. तो दो movements हो रहे हैं, interest rate का ऊपर नीचे जाना है, SBI का prices react करना. Of course, we've already understood that SBI prices are going to be reacting to the interest rate. Interest rate का movement is an independent event. उसके basis पे SBI का prices change होगा. SBI के prices change होने के कारण थोड़ी RBI interest rate ऊपर नीचे करेगा. It is on the basis of the interest rate that the SBI prices are going to be reacting. So let's say first one is interest rate goes up and interest rate goes down. The probability I don't know. And then SBI prices will go up, go down, go up, go down. Is that correct, everyone? Simple. Next, when the SBI prices were down is 75%. The probability that the interest rates went up when the SBI prices were down. Problem क्या है कि आपको question में ही Bayes theorem का एक आंसर दे दिया है. So there is going to be a lot of back calculations as well. So 75% पे एक बार रुक के आता हूँ. The probability of SBI rising and interest rate going up. SBI rising and interest rate going up, इसका joint probability 4% दे के रखा है.
this into this is 4%. The first point is going to be to plot these data, to plot this data. Did anybody get the tree correct? This was simple. SBI prices going up and interest rate going up is 4%. Joint probability दे दिया ना. Basically this one is that is the question. Probability that SBI will decrease if interest rate goes down is 80%. If interest rate goes down, then SBI का decrease, the probability that SBI will decrease, I think I gave a wrong one over here. ठीक है, चलेगा. Is the probability that SBI will decrease if interest rate goes down, वो 80-20 होना चाहिए था. मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल सेंस में 80-20 बेटर होता, बट ठीक है, अब जो दे दिया दे दिया. लेट्स सी, आई होप आंसर्स आ जाए उससे हम लोग का. I don't think it should be that big a problem. Anyways, and the probability that interest rates went up when the SBI prices were down is 75. At least you're understanding what is happening. Probability that SBI is going up, nahin, will decrease if interest rate goes down. वो 20 देना था. And the first one was the probability that interest rate goes up, given that the answer is SBI went down. नहीं, I think ठीक है, let's see एक बार क्या होता है. 48, 60. नहीं ठीक ही है. Interest rate goes up, given that SBI goes down is 75%. So let's see what we can do with this set of information. The probability that interest rate will go up given that SBI goes down. SBI goes down मतलब इस sample space में से interest rate going up का probability is 75%. इस sample space में से interest rate going up का probability is 75%. Let's see कैसे करेंगे. I don't know. I think I might have missed out on a figure. 20% ये निकल के आएगा. ओके, सॉरी 96 कौन सा? नहीं, ये SBI इंटरेस्ट रेट गोइंग अप एंड SBI गोइंग डाउन इज 4%. सो ये 96 कैसे होगा? ये दोनों है तो ये तीनों का टोटल 96 होगा. बट हाउ कैन यू से दिस विल बी 96? लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी दैट इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू गो अप गिवन दैट SBI गोज डाउन. सो SBI गोज डाउन, SBI goes down, interest rate goes up. इसका probability out of this. So this is let's say 0.75x, 0.25x. इससे खाली इतना ही समझ में आ रहा है ना. Probably that interest rate is going to go up given that SBI is going to go down. SBI is going to go down in total these many situations, out of which interest rate is going to go down, has gone up in these situations. So ये 75% 25% रेशियो में ही होना पड़ेगा ना. ये 75% 25% रेशियो में ही होना पड़ेगा ना. इसमें प्रॉब्लम है कि the kind of data I've given you, it's actually there is one more data missing. There is one more data missing. एक और डेटा देना पड़ेगा. एक और डेटा देना पड़ेगा. ये वाला ऐड कर दीजिए. सॉरी बट ऐड जस्ट दिस वन. जस्ट ऐड दिस लाइन इन द क्वेश्चन. कुछ एक दूसरा प्रोबेबिलिटी दे देता तो 3 से ही आंसर आ जाता. आई मेड अ मिस्टेक. Probability that SBI goes up given that interest rate has gone up is 10%. ये कौन सा probability होगा? 10 कहाँ पे आएगा? This one, probability that SBI goes up given that interest rate has gone up is 10%.
नाउ द सम विल बी वेरी वेरी इजी। अभी हम लोग को ये भी नहीं देखना पड़ेगा इस तरीके से। दिस डेटा इज फाइन, दिस मच। इसको ब्लैक कर देता हूं कि ब्लैक डेटा इज द वन गिवन, बाकी का डेटा अपने खुद से बना रहे हैं। दिस इज द डेटा गिवन, राइट? नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट इंटरेस्ट रेट गोज अप, SBI goes up, given that interest rate goes down is 10%. कितना का 10% is going to be equal to 4%? 40% का? कितना का 10%? Out of these many situations, 10% situations में SBI is going up, and SBI is going up in 4 out of 100 situations. तो 40 का 10% होगा तब ये 4% आएगा ना joint probability। अपने लोग को क्वेश्चन में दिया है कि if interest rate goes up, SBI will go up in 10% of the situations. And total में SBI has gone up and interest has gone up in 4% cases. This into this करके ये निकालते हैं ना, तो अगर ये दोनों पता है तो ये तो 40% होगा ही। अगर ये दोनों पता है तो ये तो 40% निकलेगा ही। There is a 10% probability that SBI will go up if interest rate goes up. And interest rate SBI has gone up 4% of the times. तो interest rate कितनी बारी गया होगा? 40% ऊपर। ये 40 है तो this is going to be 60। अच्छा ये 60 है तो 60 का, अच्छा ये 10 है तो ये 90, अच्छा ये 10:9 है 4 का, तो दिस विल बी 36। दिस इज गोइंग टू बी 60 20 12, दिस इज गोइंग टू बी 60 80 48। इनफैक्ट बेस थ्योरम का जबरदस्ती फिर दे दिया, बेस थ्योरम वाला नहीं देता तो भी चलता, बिकॉज नाउ 36 नहीं, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक समवेयर। एनीवेज नेवर माइंड, आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन एज वेल, आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन एज वेल। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मैंने वो 2080 ना आई थिंक रिवर्स कर दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया, अदरवाइज आई गिवन द क्वेश्चन करेक्टली ओनली। 80-20 ठीक करता तो शायद हो जाता क्वेश्चन आपका। नेवर माइंड, व्हाटएवर बी इट। इज एवरीथिंग ओके टिल हियर? समझ में आया कि नहीं? एवरीवन क्विकली। बेस थ्योरम वाला गलत है, इसमें SBI rising in interest, the probability that interest rate went up given that SBI prices were down. Okay, it's not 36 by 48, it's 36 divided by 36 plus 48. ये गलत है, ये गलत है, इस फिगर को काट दीजिए। आई एम सॉरी, आई जस्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें। जस्ट लेट इट बी, लेट बी। क्वेश्चन तो समझ में आ गया सबको? इस तरीके से you need to get the figures done, उसके बाद में तो everything is taken care of. These are going to be, ये 36 plus 48 कितना होता है? राइट नहीं 84 होगा, 40 50 60 70 84। अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये होगा देन इसका प्रोबेबिलिटी क्या, अगर ये हुआ देन इसका प्रोबेबिलिटी क्या। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज बोथ द इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट SBI बढ़ेगा टोटल 16% केसेस में, SBI गिरेगा टोटल 84% केसेस में। अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बोलो फॉलोइंग ऑफ द डिपेंडेंट इवेंट, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट इवेंट, अगर ये होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। एंड बेस थ्योरम में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that interest rate went up when the SBI prices were down? Suppose इसको क्वेश्चन मार्क कर दो, क्वेश्चन सही हो गया। What is the probability that interest rate, probability that interest rate went up given that SBI is down? SBI is down in how many cases total बताइए? 84 cases। उसमें से कितना केसेस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ था? 36 cases। 36 situations में इंटरेस्ट रेट was up out of total 84 situations जिसमें SBI prices were down. Simple. थोड़ा सा rectify कर दो. I'm really sorry this got a little messed up. I'll give you another question after this. Quickly. Take this quickly. I'll give you one more sum to practice actually.
Take this quickly. All right, everyone, now try this question. Try this. कंप्यूट एवरीथिंग. खुद सोचिए डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा. थिंक. क्विकली. मैनेजर का परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्केट मूव करता है कि मार्केट के मूवमेंट के बेसिस पे मैनेजर का परफॉर्मेंस डिपेंड करना चाहिए. मार्केट के बेसिस पे ना, आज मी एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर हाउ एम आई परफॉर्मिंग, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ द मार्केट्स आर टर्निंग आउट टू बी. निफ्टी ऊपर नीचे, और उसके बेसिस पे मेरा परफॉर्मेंस आएगा ना. मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे थोड़ी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट चेंज होगा. थिंक. प्रॉब्लम गेटिंग इट. ट्राई 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 क्विकली. अच्छे से ट्राई करो. आई होप आई हैवंट गिवन रॉन्ग नंबर्स ओवर हियर. पहले ट्री बनाइएगा एंड फिर खाली बेस थ्योरम अलग से करना पड़ेगा. अदरवाइज द ट्री विल कवर ऑल द फॉर्मुलाज, राइट. एंड मार्क इट कंडीशनल, अनकंडीशनल, ऑफ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. ट्राई इट योरसेल्फ. आई विल डू द होल थिंग.
हुआ? सॉरी, सारा चीज यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द फॉर्मूलाज जो एकदम फर्स्ट सेट ऑफ सम किए थे हम लोग, उसके हिसाब से। ट्री बन गया सबका? बनाओ बनाओ बनाओ, स्पीड अप। हुआ ट्री आप लोग का? ट्री बन गया? करूं? आई होप नंबर्स आर नॉट रॉन्ग। करके देख के दिया है। Manager outperforms or underperforms and the market goes up or goes down. Of course, manager का outperformance or underperformance will depend on whether the markets have gone up or gone down.
मार्केट्स अगर ऊपर गया होगा तो देयर शुड बी हायर प्रोबेबिलिटी कि मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, मार्केट्स अगर नीचे गया होगा तो देयर शुड बी लोअर प्रोबेबिलिटी दैट मैनेजर ने आउट परफॉर्म किया होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट ओवर हियर. सो लेट्स सी डेटा क्या क्या दिया हुआ है. मैनेजर आउट परफॉर्म्स 48.75% ऑफ द टाइम्स. करेक्ट. मैनेजर आउट परफॉर्म्स 48.75% ऑफ द टाइम्स. ये इसका टोटल होगा. अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट इवेंट. अनकंडीशनल बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन ये हुआ है तब ये होगा टाइप्स, एंड डिपेंडेंट बिकॉज ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. डिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट द मार्केट हैज गॉन डाउन, दिस डिवाइडेड बाय इन केस मैनेजर अंडर परफॉर्म्स, मतलब दिस में से दिस. So this part divided by this plus this, उसका probability दिया हुआ है. I'll just come back to it. Manager outperformed. What is the probability that manager outperforms given that market has gone up? Market has gone up, उसमें से outperform किया है, उसका probability 90%. I think I'm pretty much okay. I hope you guys are comfortable till here. ये सही plot किया था ये दोनों? Okay. Now market goes down का probability कितना होगा? अगर ये 48.75% है तो दिस हैज टू बी 51.25%. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. इफ दिस इज 48.75, दिस हैज टू बी 51.25%. 48.75% केसेस में मार्केट इज आउट परफॉर्मिंग, सो 51.25% केसेस में मार्केट इज अंडर परफॉर्मिंग. अच्छा, 51.25 केसेस में मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है. अभी ये वाला फैक्टर देखिए, मार्केट मैनेजर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो 95.122% ऑफ द केसेस इन विच मैनेजर अंडर परफॉर्म मार्केट हैज गॉन डाउन. मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू 95.122%. ये क्या बोल रहा है? मैनेजर अंडर परफॉर्म किया है 51.25% केसेस में, राइट? इसका 95.122% केसेस में मार्केट नीचे गिरा होगा. This divided by this plus this is equal to 95.122%. बेस थ्योरम ऐसे निकालते हैं. सैंपल स्पेस है कि मैनेजर अंडर परफॉर्म किया है, तो मैनेजर अंडर परफॉर्म किया बिकम्स अ सैंपल स्पेस. आउट ऑफ 51.25% केसेस, 51.25 सिचुएशंस, in how many situations did the market go down? These many situations, and this divided by this is given as 95.122%. So market underperformed and manager underperformed is equal to 95.122% of 51.25. See, आप लोग बेस थ्योरम सम के हिसाब से भी सोच सकते हो कि आउट ऑफ 51.25 केसेस, this many cases divided by 51.25 is equal to 95.122. Therefore this into 95.122% should be this. या ऐसे भी सोच सकते हो, probability that the market goes down given that manager underperformed is 95.122%. मतलब मार्केट का नीचे जाने का probability 95.122% है अगर मैनेजर ने अंडरपरफॉर्म किया है. तो 51.25 केसेस में मैनेजर अंडरपरफॉर्म किया है, तो इसका 95.122% केसेस में मार्केट नीचे गया होगा. तो इसका 95.122% केसेस में मार्केट नीचे गया होगा. बोलिए, मेकिंग सेंस? सो दिस इनटू दिस कितना होता है बताइए? क्विक क्विक क्विक. बोलो 95.122% और 51.25 48.75. सो स्टेप 2 में ये निकला, इफ दैट इज 48.75 एंड दिस टोटल इज 51.25, तो ये कितना होगा बताइए क्विकली. हाँ कितना? 2.50. If this is 48.75, this total is 51.25. So 51.25 minus 48.75 will give you the situation. This is मेरा step 3. अच्छा, ये 90 है तो ये 10% है. फिगर फोर्थ फिगर में 1 2 3 4 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम रिवाइज अगर करने का मन करे, so you know exactly in what process did we go ahead with the sum. अच्छा, समथिंग का 10% is 2.5, तो ये कितना होगा? ऑब्वियस सा बात है 25% होगा. समथिंग का 10% इज 2.5. 10% केसेस में इफ मार्केट हैज गॉन अप, 10% केसेस में अंडर परफॉर्म करता है, एंड 2.5 केसेस में मार्केट भी नीचे गया, अंडर परफॉर्म भी किया है.
मतलब टोटल 25 सिचुएशंस होगा, 25 सिचुएशंस का 10%, दैट इज 2.5 सिचुएशंस में मार्केट आल्सो अंडर परफॉर्म्ड एंड द मैनेजर आल्सो अंडर परफॉर्म्ड, मार्केट वेंट डाउन एंड मैनेजर अंडर परफॉर्म्ड। अच्छा, अभी 25 आ गया है, तो 25 का 90% कितना, 22.5%, दैट इज फिगर 6। ये 25 है, ये 75% है, ये 5 का ही पार्ट समझ लो, या 6 7 कर दो इसको। अच्छा, ये 22.5 है, ये कितना होगा, 22.2 कितना है बताओ ना एक बार, 22.5 26.25, दिस इज 26.25, दैट इज 8। अच्छा, इसका रेशियो भी मिल गया तो भी दिस इज टू दिस, इसका रेशियो शुड बी दिस 26.25 इज टू दिस, ये भी कर सकते हो, या 26.25 डिवाइड बाय दिस करके भी ये निकाल सकते हो, दिस डिवाइड बाय दिस करके भी ये निकाल सकते हो, जैसे मन में आए करो, जैसे मन में आएगा करोगे। द आंसर विल बी 35 and 65%। So this is your 9 and 10 figure. Not that difficult. It's not that difficult. और वैसे क्लास 11-12 का समय हिसाब से, और स्कूल में आप लोग इस तरीके से नहीं करते थे। स्कूल में आपको स्टेप्स लिख के फॉर्मूला मगअप करके वो इनटू इंटरसेक्शन और ये सब करके इट यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटिंग। $95.122% is given as that manager underperform करेगा, दिस इज गिवन, गिवन मतलब दिस बिकम्स अ सैंपल स्पेस कि मैनेजर अंडर परफॉर्म किया है, उसमें से मार्केट नीचे गया है, वो कितने % सिचुएशंस में होगा। सो मैनेजर अंडर परफॉर्म किया है, नाउ दिस बिकम्स योर सैंपल स्पेस 51.25, इसमें से 95.122% टाइम्स में मार्केट नीचे गया है। देखो 2.5 plus 48.75 is 51.25. Out of these total number of situations, these many situations में market ऊपर गया था, these many situations में market नीचे गया था. So this divide by this is what is, this is actually Bayes theorem. Bayes theorem is given as your question. Generally Bayes theorem निकालने बोलता है, but in good number of questions Bayes theorem will be given in the question itself, and based on that you'll have to back calculate any probability. बोलो clear? Take this table down. Take this table down well properly. फिर मैं मार्क करा रहा हूँ। टेबल में अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को ब्रैकेट साइड में थोड़ा जगह छोड़ देना, मैं सबका लिखवा दूंगा एक साथ। साइड में थोड़ा जगह छोड़ देना, 1 to 8 भी लिखने का मन है, 1 2 3 4 एंड ऑल यू कैन इफ यू वांट, एंड टेक द टेबल डाउन।
डन. इसको ब्रैकेट करके लिखना अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट. दीज टू आर अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट, अनकंडीशनल इंडिपेंडेंट. फर्स्ट टू अनकंडीशनल इंडिपेंडेंट 25 and 75%. डन. नेक्स्ट वाला कंडीशनल डिपेंडेंट. ये अगर हुआ तो डिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटीज क्या है? कंडीशनल डिपेंडेंट. दीज फॉर conditional dependent. This one is conditional dependent. Done. These joint. These are your joint probabilities. Quickly. And the last two, unconditional dependent. Unconditional dependent. Unconditional dependent. Bayes theorem we cannot put it on the table. Bayes theorem we cannot put it in the tree. That is why I'm making it this way. Market ऊपर गया, manager outperform किया. Manager outperform किया total 48.75 cases में. That's your sample space. Out of which market went up in 22.5 cases. Manager outperformed in a total of 48.75 cases. Out of which market went down in 26.25 cases. Probability that the manager underperformed in total 51.25 cases. उसमें से कितना केसेस में मार्केट ऊपर गया? 2.5. एंड 51.25 केसेस में मैनेजर अंडर परफॉर्म किया. उसमें से मार्केट कितनी बार नीचे गया? 48.75. So we are trying to test. Now if you look back and see the question, we are actually looking at कि whether manager का outperformance and underperformance, does it depend, how much percentage the chances कि manager का performance depends on how the markets are. एक हुआ कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजेंट मैटर, मैनेजर हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा. एंड दूसरा हो कि नहीं, मार्केट जैसा परफॉर्म करता है ना उसके कारण मैनेजर इज परफॉर्मिंग गुड और बैड. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक एट ओवर हियर. मैनेजर का अंडर परफॉर्मेंस ओवर परफॉर्मेंस मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंडेंट है या फिर इज इट वेरी वेरी इंडिपेंडेंट. That's what we are looking at over here. Bayes theorem tells you what is the probability that this would have had happened. इसके होने से ये नहीं हो रहा है, ये आउटकम है, ऐसा हुआ है. अब बताओ ऐसा हुआ होगा का probability क्या है? Bayes theorem is not talking about this happening based on this. It's saying that this has happened. Now tell me what's the probability that this would have had happened. बोलिए, is everybody comfortable till here? बोलो, समझ में आया? Everyone, take this part also down. This completes your Bayes theorem वाला part एक बार. फिर अपने बाकी का probabilities वाला पोर्शन करेंगे. Bayesian analysis is a separate reading. I'll do that also. उसमें Bayesian analysis का Bayes theorem का extension है. This is a part of all of your probabilities only. Take this down and then we'll move forward with the next part. बोलो, we are good till here?
Everybody, done till here? Let's move forward with the next part.